Good morning, everyone, and welcome to the Utthan session today. So, today we're starting a new topic, which is when to adjust and when to adapt. And for the session today, we have Sister Prachi who's joined us. So, Sister has been there, has taken a few sessions before also, but I'll quickly introduce her. So, Sister is a motivational speaker who she has been stimulating others with intense positive power in her words that comprise of deep spiritual understanding and positive energy. She has been associated with spiritual practices and has been taking interest from the age of 12. Apart from her educational studies, sports, and extracurricular activities, she has been she has started taking deep interest in the spiritual knowledge and study of it. She is an excellent orator and has been guiding different types of professionals in various organizations in national and international conferences. Besides this, she is also involved in various creative works and multimedia productions towards the elevated goal of establishing a value-based society. Some of the organizations that Sister has benefited are DRDO Delhi, IIT Kharagpur, Agriculture Research Institute Jammu Kashmir, Ranbaxy, Hero, Aisha Tractors, and many others. She has also been awarded with Dr. Ambedkar Gyan Ratna Award. Um, Sister, on behalf of everybody, I'd like to welcome you to Utthan once again today. Om Shanti, and over to you now. Thank you, Om Shanti. Am I audible? Yes. Okay, thank you. So, very good morning to my own family. Meeting you again. It's a great pleasure. And today's topic is when to adjust and when to adapt. Uh, Hope so because it's a sequential series. Uh, you must be clear about why ad- to why adjustment and adaptation is essential. Is it? Is it clear, Anushka sister? Has it been taken before in this sequential series? That adjustment and adaptation is essential. Yes. Okay, okay, fine. Because in this changing world, we know that without adaptation, we cannot grow. And without adjustment, we cannot thrive. See the two words. When I want to grow, I need to adapt. And when I need to thrive, I need to adjust. ये दोनों चीजें इतनी essential है because in a temporary condition, in a temporary change, you have to adjust. And in a permanent change, when you have to grow, you have to adapt. For example, temporary, we come across so many changes. कभी कोई परिस्थितियां बदलती है, कोई व्यक्ति हमारे सामने टेम्पररी आता है, जिसकी बातें, जिसके व्यवहार, जिसके इंस्ट्रक्शंस हमें पसंद नहीं आते या हमारे यूजुअल चीजों से अलग होते हैं. कोई टेम्पररी कंडीशंस जो हमारा यूजुअल रूटीन है उससे अलग हो जाता है, अचानक से हो जाता है. चेंजेस बता के नहीं आता है चेंज ना, अचानक से आता है चेंज. तभी वो चेंज है, अचानक हो जाता है, जो हम उसके लिए रेडी नहीं भी होते हैं. हमारी नॉर्मल रूटीन के अगेंस्ट, हमारे जो यूजुअल व्यवहार के, यूजुअल एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट, जो इस तरह के अलग अलग चेंजेस हमें मिलते हैं, तो उसमें मुझे एडजस्ट होना होता है.
एडजस्टमेंट मीन्स नो क्वेश्चन। क्यों हुआ ऐसा? ऐसा नहीं होना चाहिए था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो क्वेश्चनिंग है, ये हमारे दिमाग से जब चेंज इस ये खत्म होता है ना, तब उस चेंज के लिए हम एडजस्ट कर लेते हैं अपने आप को। चलो अब हम इसके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं, इसको समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा ना। सो आप सब तो मुझे दिख नहीं रहे हैं, दिखते तो अच्छा था, पर ये एक्टिविटी आप मुझे सुनते हुए जरूर अपनी जगह करेंगे। ओके, सो दिस इज राइट हैंड का थंब। किया भी होगा पहले आपने ये एक्टिविटी, लेकिन क्योंकि इस सेशन से जो मैं समझाना चाहती हूँ उससे ये लिंक्ड है, इसलिए दोबारा कर लीजिएगा अगर किया हुआ होगा तो। ओके, सो दिस इज राइट हैंड का थंब एंड लेफ्ट हैंड का दिस इंडेक्स फिंगर। ओके, पॉइंट इट आउट। यस, ऐसा सब कीजिए अभी। कब अभी कीजिए। सिस्टर अनुष्का यूट्यूब। ओके फाइन। अभी मैं बोलूंगी चेंज। चेंज बोलने से क्या करना है? इसका अंगूठा, इसका इंडेक्स फिंगर, एक हाथ का सिर्फ एक ही फिंगर बाहर रहेगा, नॉट टू। फाइन, रेडी? ओके, नाउ चेंज। चेंज, 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 change, change, change. Now faster. Change, 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 change. Okay. कौन कौन कर पाए? It was difficult. Okay. पर अगर मैं कहूँ कि जो जो कर पाए अपना वीडियो ऑन करके जरा आप करके सामने दिखाइएगा। सो जब हम खड़ा करके या सबके बीच में करने के लिए कहते हैं तो वो और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। खुद से फिर भी थोड़ा प्रयास कर पाए भी होंगे। सो यू वर एंजॉइंग दिस चेंज ना? यू वर एंजॉइंग दिस चेंज। क्यों? पता है क्यों? यू वर एंजॉइंग दिस, बट व्हाई यू वर एंजॉइंग दिस? This was a change, but I was enjoying it because आपने ये क्वेश्चन नहीं किया, ये क्या बच्चों जैसा खेल हम लोगों को कराते हैं। यू वर नॉट क्वेश्चनिंग कि इतना फास्ट क्यों बोल रहे, धीरे धीरे बोलना चाहिए ना। सो आपने वो चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि जो कहा जा रहा है मुझे करना है, आई विल ट्राई। सो यू वर एंजॉयिंग इट। देयर वाज नो क्वेश्चन अंदर क्या चल रहा है, महत्वपूर्ण वो था। फाइन। सो ऐसे ही बाहर जो चेंजेस आ रहे हैं, महत्वपूर्ण है कि मेरे अंदर क्या चल रहा है उस टाइम। नो क्वेश्चन, क्यों, क्या। इट्स इजी, आई ट्राई टू सेट accordingly. That is what is adjustment is. It's not so difficult, not at all difficult. बस यहाँ पर मुझे उन क्वेश्चंस को स्टॉप कर देना होता है और उस धारा के साथ मुझे एडजस्ट करते हुए बढ़ना होता है। और ये एडजस्टमेंट कब जरूरी है? यस, व्हेन द सिचुएशन इज टेम्पररी। थोड़े समय के लिए आई है ये चीजें। हम रोज अपने घर में, हो सकता है एसी कमरे में सोते हो, अच्छे बिस्तर में सोते हो, अभी एक गेट टुगेदर में आप कहीं बाहर गए हो, वहां पे वो चीज नहीं भी मिलेगी। ओके, वी कैन एडजस्ट, सोना ही तो है। नो क्वेश्चन, यहाँ क्यों नहीं है, आई एम एंजॉयिंग इट।
हर चीज मुझे अच्छी लगती है, हर चीज मुझे अच्छी लगती है। इट्स ऑल टेम्परेरी, मैं कर सकता हूँ, और उन चीजों को हम फिर एंजॉय करेंगे। व्हेन दूसरा हम कब एडजस्ट करेंगे? व्हेन आई हैव टू एडजस्ट। क्योंकि जब हमें ये पता रहता है कि मेरे लिए मेरी पीस, मेरी जो अंदर की शांति है, मेरे अंदर की जो हार्मनी है, मेरे अंदर की जो एक इंटरनल मेंटल स्टेट है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन बीइंग राइट। ये होना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था। बट मोर इम्पोर्टेंट इज माई इंटरनल मेंटल स्टेट। I can adjust. I can adjust. Not proving always that I'm right. Maybe I'm not right. कोई भी सिचुएशन जो सामने आ रही है, जो चेंज सामने आ रहा है, आई एक्सेप्ट। अभी आपने क्वेश्चन नहीं किया, इस किसी तरह का आपने मुझसे क्वेश्चन नहीं किया, बिकॉज यू एक्सेप्टेड। ओके, सो इट्स नॉट me proving right. Acceptance does not mean that I am right. Acceptance does not mean कि मैं wrong को स्वीकार कर रहा हूं। इस चीज पर आप गौर कीजिए। Acceptance does not mean that I accept कि जो wrong है वही सही है, मैंने वो स्वीकार कर लिया। नहीं, एक्सेप्टेंस मीन्स जो है जैसा है, ओके, अभी मुझे क्या करना है, जो है जैसा है, अब मुझे क्या करना है। रॉन्ग है, ओके, वो रॉन्ग है, अब मुझे क्या करना है, मुझे कैसे जानना है। एक्सेप्टेड, जो है जैसा है मुझे समझ में आ रहा है, ओके क्या है, अब मुझे कैसे जानना है। सो मेरे लिए मेरी इंपॉर्टेंट है, मोर इम्पोर्टेंट इज माई पीस, माई हार्मनी, माई मेंटल स्टेट इनसाइड। और जब छोटी छोटी, अगर मैं थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाती हूँ, और अगर वो बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड कर सकते हो, yes, that's the time I need to adjust. छोटे से एडजस्टमेंट में मैंने सारी एनर्जी गंवा दी, तो बड़ा कॉन्फ्लिक्ट जब खड़ा होता है तो पूरी तरह से एग्जॉस्ट होके हम दुनिया से और संबंधों से और खुद से भी भागने लगते हैं। फिर ऐसा लगता है भाग जाओ यहाँ से। छोटी सी चीज थी, उस समय एडजस्ट कर लिया होता, इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट में मेरा दिमाग नहीं खराब होता। छोटे छोटे एडजस्टमेंट में भी हम अपना दिमाग सारा ऑफ कर देते हैं, इतनी एनर्जी लगा देते हैं टू प्रूव राइट, टू प्रूव द व्हाट आई नीड इज उस तरह की चीज होनी चाहिए। कभी कभी हमें फर्म होना पड़ता है। इट डज नॉट मीन कि मुझे फर्म नहीं होना है, लेकिन फर्म कहाँ होना है? फर्म होना है अपने, जब हम अपने इंटरनल वैल्यूज में फर्म होना है, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं। मुझे जो डिसीशंस में मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ ये चीज होनी चाहिए, लेकिन उस डिसीशंस, उस जो मेरा फाइनल मंजिल है, एक विजन है, वहां तक पहुंचने के लिए भी एडजस्टमेंट्स चाहिए ना। हर एक मेरे अनुसार चीजें नहीं करेगा, हर एक मेरे अनुसार नहीं होगा, लेकिन उसके साथ एडजस्ट होकर चल लेना। मैं एक आपको उदाहरण सुनाती हूँ। इट्स नॉट सो प्रोफेशनल, बट कई उदाहरण आपने सुने होंगे ना, कि एक फैमिली में एक वाइफ
कि एक लड़की की शादी एक ऐसे घर पे हो जाती है, बाद में पता लगता है कि हस्बैंड इज अ ड्रग एडिक्ट, बाद में पता लगता है। उसको एक्सेप्ट करती है, कई महिलाओं की ऐसी कहानी है, उसको एक्सेप्ट करती है, उसके साथ एडजस्ट करती है, उसके एक विजन है टू एक हैप्पी फैमिली की, एक आइडियल कपल की, एक सुंदर फैमिली की उसका विजन है, घर छोड़कर आई है वो। एक इतना बड़ा उसको एक सामने सिचुएशन खड़ा हो जाता है। लेकिन मैंने देखा है, आपने भी कई देखे होंगे, सुने होंगे, उसका एक विजन है, यस दिस शुड बी देयर, ऐसा होना है। लेकिन वो एक मंजिल है, वहां तक पहुंचने के लिए कुछ एडजस्टमेंट चाहिए। वो उसके साथ एडजस्ट करती है, उसके साथ स्नेह से चलती है, उसको धीरे 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 मोल्ड कर लेती है, और उस नशे से भी, उस एडिक्शन से भी छुड़ा लेती है। ताकत है वो, बहनों में, महिलाओं में वो ताकत देखिए। तो उस मंजिल तक पहुंचने के लिए कुछ एडजस्टमेंट्स, जब एडजस्टमेंट्स के साथ जब हम चलते हैं, तो हमारे जो मेंटल पीस, मेंटल क्लैरिटी, और जो एक इंटरनल एक्सेप्टेंस के कारण जो एक इंटरनल लव बना रहता है। बार बार मैं ये कहूंगी कि एक्सेप्टेंस डज नॉट मीन दैट ही इज राइट, एवरीथिंग इज राइट। नहीं, मैंने रॉन्ग को समझ लिया यही सही है, नहीं। एक्सेप्टेंस मीन्स जो है जैसा है, ओके, मैंने स्वीकार किया है इसको, विदाउट एनी क्वेश्चनिंग। जो है जैसा है, मैंने उसे स्वीकार किया है विदाउट एनी क्वेश्चनिंग। और अब मैं उस इंटरनल लव के साथ, इट्स एन अनकंडीशनल लव, मेरा वो इंटरनल लवफुल स्टेट के साथ, मैं उस पीस के साथ अपने को उसके साथ मिलाकर चलती हूँ, तो धीरे धीरे वो एनर्जी उनको मिलने से वो धीरे से रिस्पेक्ट बढ़ता जाता है, और तब उनके भी मेरे लिए एक्सेप्टेंस बढ़ता जाता है। सो दिस इज वेयर आई नीड टू एडजस्ट, जहां पर एक छोटा सी फ्लेक्सिबिलिटी एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड कर सकते हैं, और एक ट्राई कर सकते हैं, चीजें बदल सकती है, बहुत कुछ बदल सकता है। अगर उस टेम्पररी चेंज में मैंने एडजस्ट नहीं किया, क्वेश्चंस, एक हार्श वर्ड्स और एक एग्रेसिवनेस, तो वो एक टेम्पररी चेंज एक परमानेंट नेगेटिव चेंज में बदल जाता है। नहीं तो वो टेम्पररी रहता है, आगे चला जाता है, आगे चला जाता है। मेरे उस एडजस्टमेंट न करने से कई बार वो टेम्परेरी चेंज क्या होता है, बहुत बड़े नेगेटिव परमानेंट चेंज में बदल जाएगा। ओके, बट इट डज नॉट मीन दैट यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज विथ योर प्रिंसिपल्स। नहीं, आप प्रिंसिपल्स के साथ चल रहे हो, इंटरनली एडजस्टमेंट इज एक्सटर्नली, एक्सटर्नल है, एडजस्ट कर रहे हैं। सो ये जितना हम अपने एक्सटर्नल स्वरूप में फ्लेक्सिबल होते हैं, रिजिड नहीं होते हैं, तो वो टेम्परेरी एक हवा आई, जैसे वो कहानी सुनते नहीं, बहुत कॉमन है, एक ओक का ट्री खड़ा रहता है, वो उस दुबले पतले बैम्बू ट्री पर हंसता है, तुम तो कितने दुबले पतले हो, एक छोटी सी हवा भी तुमको हिला देती है। तो उसने कहा, मैं दुबला पतला नहीं हूं, मैं फ्लेक्सिबल हूं। तो कहा, तुम तो कमजोर हो। बोले, ये मैं कमजोर नहीं हूं, मैं फ्लेक्सिबल हूं।
और एक बार तेज आंधी आती है और वो ओक का ट्री अप्रूट हो जाता है, लेकिन वो बैम्बू वो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी से उसको पार कर लेता है, खड़ा रह जाता है। सो कई बार एक क्वेश्चन आता है कि अगर मैं थोड़ा भी एडजस्ट करता हूँ, शांत रहकर चीजों को स्वीकार करता हूँ, तो कई बार लोग उसको मेरी कमजोरी समझने लगते हैं। आपको बताओ लोग एडजस्ट क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो डरते हैं। भय एक बहुत बड़ी चीज है। अगर मैंने ऐसा किया, ये बार बार ऐसा करता रहेगा, एक डर होता है कि ये तो मेरे को बार बार हावी हो जाएगा मेरे ऊपर, तो मैं एडजस्ट ना करूं, मैं ऐसे ऐसे रहूं तो ये ठीक हो जाएगा। इट्स अ मिसकंसेप्शन। आज तक आप ऐसे ही चलते रहे, कोई ठीक हुआ क्या? बल्कि आप ही बिगड़ गए। यही तो अनुभव है। तो इस मिस बिलीफ को चेंज कर दो ना। एडजस्टमेंट दो तरह के होते हैं। अब आप इसको समझिएगा। मेरी इंटरनल स्टेट इज इम्पोर्टेंट। अगर आप कमजोर अपने आप को इंटरनली करके फिर एडजस्ट कर रहे हो, तो सामने वाला हावी होगा ही, परिस्थितियां हावी होंगी ही, क्योंकि आप इंटरनली कमजोर। एडजस्टमेंट इज अ पावर, पावर टू एडजस्ट, एक शक्ति है, कमजोरी नहीं। अभी हम इसको समझते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम ये सोच लेते हैं कि ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। ये जो भाई की सोच है ना, ये हमको इंटरनली कमजोर करती है। भाई की सोच हमको इंटरनली कमजोर करती है। हमें क्या करना है? देखिए, लोग मुझे फिर स्वीकार नहीं करेंगे, मेरा फिर कभी कोई महत्व नहीं रहेगा। नो, एडजस्टमेंट शुड नॉट कम बाय फियर, फियर ऑफ अप्रूवल। मुझे कोई आगे पता नहीं, मैं अगर ऐसा नहीं चला तो लोग मेरा मान ही नहीं रखेंगे, मेरा कोई सम्मान ही नहीं रहेगा, यूं ही मेरे साथ चलते रहेंगे। नो, एडजस्टमेंट का should come from inner strength. I know that peace is essential. I know who I am. मैं एक शक्ति, मैं एक इस ऑर्गेनाइजेशन या फैमिली का फाउंडेशन। It comes from silence with understanding. एक अंडरस्टैंडिंग के साथ जब एडजस्टमेंट आता है ना, तो आई फील मोर स्टेबल एंड पीसफुल, बजाय कि मैं अंदर से अपने आप को छोटा महसूस कर रहा हूं। I does not suppress my feelings there. I am silent inside with understanding. और तब मेरे अंदर एक सेंस ऑफ डिग्निटी पैदा होती जाती है विथ द टाइम, ऑल द टाइम आई एम एडजस्टिंग। मेरी डिग्निटी इंटरनली, जो एक सेंस ऑफ डिग्निटी है, वो बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बजाय सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी बढ़े। क्या स्पष्ट हो पा रहे हैं? एडजस्टमेंट करना भी है, नॉट विद फियर। ऐसा ना हो जाए इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं, नहीं, with the internal strength, with the clarity, with the silence, in that silence of understanding, I'm adjusting. वो मेरे इनर पीस को बढ़ाएगा, इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। With the time, I feel more stable, more peaceful.
increasing my dignity inside, feeling of dignity. And if I'm not adjusting with that understanding and strength, एक डर के साथ क्या होगा? अंदर छोटा महसूस करेंगे, अपने फीलिंग्स को सप्रेस करेंगे, एक इनसिक्योर फीलिंग आती जाएगी और फिर कहेंगे नहीं करना चाहिए ऐसे एडजस्ट. How you are adjusting is more important. Right? बैम्बू ने समझा ये मेरी कमजोरी नहीं, ये मेरी ताकत है. आई एम फ्लेक्सिबल, आई एम क्लियर. कोई तूफान आने से, चुप जाने से या तूफान चला जाता है. मुझे ये समझ है. When I am in a soul conscious stage, ना बॉडी कॉन्शियस में तो ऐसा ही होना चाहिए. क्वेश्चंस तो आप खत्म ही नहीं कर सकते. In a soul consciousness stage, I feel that whatever going on is a drama and it is right. Because God is teaching me, God is giving me strength. एक बहुत सुंदर पिक्चर किसी ने मुझे भेजा था. अभी वो मेरे पास नहीं है, मैंने ढूंढा, पर वो पिक्चर मुझे बहुत कुछ सिखा गया. वो क्या था कि कुछ लोग थे, वो अपने ऐसे कंधे पर क्रॉस, ऐसा एक क्रॉस, लकड़ी का एक क्रॉस लेकर चल रहे थे. इतना बड़ा क्रॉस था कि क्रॉस का एक हिस्सा कंधे पर था, तो उसका जो डंडी लंबी वाली है वो पीछे जमीन पर घसीटते हुए चल रहे थे. उनको कहीं लेकर जाना था एंड दे almost 10 people were walking with that cross on the shoulders. तो एक व्यक्ति ने क्वेश्चन करना शुरू किया कि अरे सबको तो बहुत आसान है चलना, मेरा तो क्रॉस लगता है सबसे भारी है, सबसे बड़ा है, मेरे लिए तो बहुत मुश्किल हो रहा है. एंड आई एम इन द लास्ट, मैं कितना पीछे हूँ, मेरे को ये बहुत भारी लग रहा है, बहुत ये, काश ये छोटा हो जाता, काश ये छोटा हो जाता. उसने गॉड को प्रे किया, काश ये छोटा हो जाता. सो ही गॉट द परमिशन कि चलो छोटा कर ले. तो उसने थोड़ा सा नीचे का हिस्सा काट दिया और जब वो उसको लेकर चलने लगा तो वो चलते चलते, जस्ट गिव मी अ मिनट, जस्ट अ पॉज. सो उसने क्या किया, ही गॉट द परमिशन. उसने नीचे का हिस्सा थोड़ा सा छोटा कर लिया. वो और आगे हंसता हुआ चलता गया, अब तो मेरा और आसान हो जाएगा चलना. लेकिन उसने कहा अरे मैंने इतना ही छोटा क्यों किया, काश मैंने थोड़ा और छोटा कर लिया होता, परमिशन तो मुझे मिली गई थी, तो मैं तो दौड़ता दौड़ता पहुंच जाता, हल्का बहुत हो जाता. उसने गॉड को प्रे किया, मैंने बेवकूफी कर दी, मेरे को थोड़ा कम ही छोटा किया, मेरे को एक बार और परमिशन दिला तो मैं थोड़ा और छोटा कर लूं. गॉड ने उसकी सुन ली, उसको परमिशन मिल गई, उसने और छोटा कर लिया और फिर तो दौड़ता 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 आगे पहुंच गया. सबसे आगे उन 10 के वो ही चल रहा था. लेकिन इतने में एक पिट आया, यानी जो था वो एक हिली एरिया में देवर क्रॉसिंग, और वो दो ऐसे के बीच में एक बड़ी सी एक नहर थी. उस नहर को अब उनको क्रॉस करना था. तो वो वहां जाकर अटक गया कि अब मैं इसको क्रॉस कैसे करूं. फिर उसके दिमाग में आया कि मैं अपना ये क्रॉस को ऐसे लगा देता हूँ तो शायद मैं उसको उसके ऊपर चल के चला जाऊंगा. तो लगाया तो क्या देखा, वो तो छोटा था. दूसरे आए, अपने क्रॉस को वहां रखा लकड़ी के और उसके ऊपर चल चल के चले गए. तब उसको महसूस हुआ कि ये मैंने क्या किया. गॉड ने मुझे वो साधन तो दिया था,
जो मैं आगे के चैलेंज को क्रॉस कर सकता था, लेकिन मैंने ही उसे कट शॉर्ट कर दिया। सो व्हाट डज दैट टीच अस? ये चीज से मुझे ये चीज समझ में आई कि जो चीज मेरे सामने अभी एक टेम्परेरी एडजस्टमेंट मुझे चाहिए होता है, वो मेरी ताकत बढ़ा रही होती है, वो मेरे अंदर वो स्टेबिलिटी, वो अंडरस्टैंडिंग बढ़ा रही होती है, जो मैं आगे के बड़े सिचुएशन को भी हमेशा बहुत अच्छे से क्रॉस कर सकूंगा। जी भाई, तेरा वाला कनेक्ट हो रहा है, हमारा कनेक्ट ही ना हो ओके, सो वो आगे के लिए मेरे अंदर स्ट्रेंथ पैदा कर रहा है। सो ड्रामा में जो चीजें आ रही है मेरे सामने, मेरा नुकसान करने कुछ भी नहीं आ रहा है। सो हमें बी रेडी, जो भी बात आएगी, with the stability, with the understanding, I know what I have to do without seeing others। कई बार हम दूसरों को कंपेयर करते हैं, इसलिए भी एडजस्ट नहीं करते। उसके साथ तो ऐसा नहीं, मेरे साथ ही ऐसा क्या? भय के कारण, कंपैरिजन के कारण, फिर हम डर के मारे अपने सप्रेस करेंगे अपनी फीलिंग्स को, और फिर इंटरनली दूसरों को ही देखते रहेंगे, वो तो बढ़िया चल रहा है। और आजकल तो और स्टेटस में भी बढ़िया बढ़िया लोग डालते हैं, भाई ये तो खुशी है, हम ही ऐसे। तो अपनी सप्रेस करते करते फीलिंग्स को हम, एडजस्टमेंट हमको भारी लगता है और हम लो फील करने लगते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमें अपनी इनर, ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये मेरी शक्ति है, ये मेरी डिग्निटी है। तो अपने उस पॉजिटिविटी के साथ एडजस्टमेंट करना। ओके, सो कभी कोई बात आप पर हावी नहीं हो पाएगी, बल्कि आपके जो वाइब्रेशन सामने वाले को मिलेंगे ना, वो इंटरनल अंडरस्टैंडिंग, स्ट्रेंथ और डिग्निटी के, वो सामने वाले को झुका देते हैं, सामने वाले को झुका देते हैं, वो हावी कभी नहीं हो पाएंगे। आप जब पॉजिटिविटी के साथ एक पावरफुल एडजस्टमेंट करते हैं, एक वीक एडजस्टमेंट नहीं। सो व्हेन टू एडजस्ट समझ में आया, एंड हाउ और व्हाई टू एडजस्ट। नाउ कमिंग टू अडॉप्ट, व्हेन टू अडैप्ट। सो व्हेन आई एक्सेप्ट दैट टेम्पररी चेंज, I adjust accordingly, temporarily, and finally, जब वो मान लो चेंजेस परमानेंट भी होती है, हमें पता नहीं होता, हमने तो उसे टेम्परेरी समझा था, लेकिन वो लंबे काल तक चला। I adapt accordingly. So, अडेप्ट कब किया जाता है? एडेप्शन हमें, जब हम ये समझते हैं कि मुझे आगे ग्रो करने के लिए ये चीज जरूरी है। देखिए, एक बच्चा है, खेलता है, उसका आप बचपन से रूटीन को देखो, खेलना, बातें करना, घूमना, लेकिन धीरे धीरे जब उसको ये समझ में आता है कि एक अभी मुझे आगे ग्रो करना है, तो वो अडेप्ट करता है चेंजेस में। वो बड़ा हो रहा है, वो पढ़ाई पर ध्यान देता है, अपनी रूटीन को चेंज करता है, बिकॉज इट नीड्स टू ग्रो। इट्स एन इनर ट्रांसफॉर्मेशन। इंटरनली हम अपने आप को उसमें एडेप्ट करते हैं, अपने बिलीव्स को चेंज करेंगे, अपने अपने जो इच्छाएं हैं उसको चेंज करेंगे। Hope you understand. Adjustment was
with a temporary situation. And I just, yeah. And now I adapt. मेरी जो इच्छाएं थी उसको मैंने मोल्ड किया, छोड़ा नहीं है, I molded it. एक पॉजिटिव वे में मैंने उसको मोल्ड किया. फॉर एग्जाम्पल, मुझे याद है कि when I was in class 11th, मेरे सामने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई थी, बिकॉज इन 10th और उसके पहले के कुछ कुछ ऐसे कॉम्पिटिशन्स में आई वॉज इमर्जिंग एज अ वेरी ब्राइट साइंस स्टूडेंट इन माई स्कूल. आई वॉज स्टडिंग इन दिल्ली पब्लिक स्कूल. सो वहाँ पर मुझे 11th क्लास 10th क्लास में हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली, और एक नेशनल साइंस क्विज में the quiz organizers, the Sony channel, where they were selecting from the district level, the students from district level. तो हमारे पास भी आया. We were the 3 students selected from the school, and हम लोग आगे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, and finally we reached the finals. and finals में भी ऐसा हुआ कि दिल्ली के, साउथ के, पूरे ऑल इंडिया से 40 टीम्स हुए थे, those were selected, और उनमें से 6 टीम्स को सिलेक्ट करना था, only 6 टीम्स. क्योंकि मैं बहुत बचपन से क्लास 7 से मेडिटेशन कर रही थी, ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी हुई थी, and I was following these spiritual studies. तो ब्रेन में पॉजिटिविटी के सिवाय कुछ था ही नहीं उस टेंडर एज में. मुझे एक गाइडेंस मिल गया था, मुझे एक मेडिटेशन से जैसे ब्रेन के सारे ब्लॉकेजेस खुल गए थे. एक मिरेकल मैंने एक्सपीरियंस किया था अपने लाइफ में. तो जो बातें हम पढ़ते थे, मुझे बहुत शौक था एनसाइक्लोपीडियाज पढ़ने का, तो मैं लाइब्रेरी जाने से सब बस वही पढ़ना. तो वो एक ब्रेन में एक स्टोर होता जाता है ना, कोई चीजें खत्म नहीं होती है जो आप पढ़ रहे हो. तो जब उसका टाइम आता है उसको फाइल को खुलने का, तो इट्स अ सुपर कंप्यूटर, वो फाइल ऑटोमेटिक खुल जाती है. उसको ओपन कर, आपको कमांड देने की भी जरूरत नहीं है. सो वो उस बेनिफिट को मैंने वहां साइंस क्विज में एक्सपीरियंस किया, क्योंकि यहाँ सिर्फ पॉजिटिविटी थी ना. घबराहट होता, नेगेटिव होता, तो बच्चा एग्जाम में पढ़ा हुआ भी भूल जाता है. तो यहाँ सिर्फ पॉजिटिविटी, ओनली पॉजिटिविटी. यस, पावरफुल, एक स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, नहीं भी होगा तो सीखेंगे ही ना, सीखने ही तो आए हैं. और आपको बताऊं, हुआ ये कि उन 6 टीम्स में वी वर द फर्स्ट, और वी गॉट एन अपॉर्चुनिटी उस समय सोनी चैनल में आने के लिए. जब ये शुरुआत थी हमारे समय में, जब छोटे थे, तो ओनली डीडी वाज देयर. बाद में ये सब चैनल्स आए, एंड हमें ये मौका मिल गया. और आपको पता है क्या हुआ? जिस समय 11th क्लास में हम आए एंड हमको जाना था इस फाइनल कंपटीशन के लिए, जिसमें हम टीवी में आने वाले थे, मुझे जॉन्डिस हो गया. जब जॉन्डिस हुआ तो ओके, इट वाज टेम्परेरी ना, तो मैंने कहा ओके ठीक है, मैं अपने खान पान पे ध्यान रखूंगी, ये करूंगी, ओके ध्यान. फिर डबल जॉन्डिस हो गया, एंड माय डॉक्टर डिनाइड कि तुम नहीं जाओगे दिल्ली. मैंने कहा हाउ इज इट पॉसिबल, इतना बड़ा चांस. मेरे प्रिंसिपल मेरे घर पर आए मदर फादर को कहने कि नहीं, आप इनको भेजो, हम पूरा ध्यान रखेंगे, हम पूरा इनके. दे डिनाइड कि हमारे लिए बच्चे ज्यादा कीमती है, उसकी जीवन कीमती है, वी विल नॉट अलाउ. मेरे ऊपर क्या बीता बताओ. आई अडेप्टेड. नाउ इट वाज फाइनल. इट वॉज नाउ फाइनल कि आई वॉज नॉट गोइंग. और इतना बड़ा चांस, इतने साल, इतना समय की मेहनत खत्म हो रही है. बट मैंने अपनी उस इच्छा को, मैं यहाँ क्यों सुनाई, इच्छा कितनी बड़ा चांस. इससे बड़ी एक बच्चे के लिए इच्छा क्या होती है?
लेकिन उस इच्छा को मैंने बहुत पॉजिटिवली मोल्ड किया थैंक्स टू द अंडरस्टैंडिंग गेटिंग फ्रॉम दिस ब्रह्मा कुमारीज। मैंने कहा अगर मैं जाती तो मेरा अभिमान कितना बढ़ गया होता, शायद मैं ऐसी नहीं होती जैसे आज हूं। इसलिए जो था थैंक्स, मुझे आज लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं। मैंने जो पढ़ा मैं उस चीज को सामने रख सकी, वहीं तक अच्छा है। और आपको पता है क्या हुआ? मैं आई स्टेड वेरी काम क्वाइट एंड मेरे को बहुत, आई वॉज वेरी हैप्पी। जो भी था बहुत अच्छा था। आपको पता है मेरे अलावा जो दो दो बच्चे और गए, वो हार के जब लौट के आए तो बल्कि और मेरे लिए वो हो गया कि अगर ये चली जाती ना तो जरूर जीतते। शायद मैं जाती तो हार के भी आ जाते, परंतु अब जब ये हार के आए तो मुझे बल्कि और ज्यादा मान वो हो गया कि अगर ये चाहती तो। इसलिए जो हो रहा था बहुत अच्छा हो रहा था। सो कहीं ना कहीं हमें अडेप्ट कर लेना होता है बहुत सारी बातों में। सो अब शायद स्पष्ट हुआ होगा कि इनर ट्रांसफॉर्मेशन इज व्हाट एडेप्शन इज। परमानेंट चेंजेस के लिए हमें अपनी इच्छाओं को, अपने बिलीव्स को, अपने इंटरनल जो नए अंडरस्टैंडिंग्स को हमें पैदा करना पड़ता है। एंड दैट इज व्हाट इज अडेप्ट, एंड दिस इज व्हाट इज रियल ग्रोथ। सो adaptation is for growth and adjustment is to thrive. उस समय मैं स्टेबल रहूं, उस समय मैं शक्तिशाली रहूं। Okay, so finally, last 2 minutes meditation. Let's sit back, detached from the external world. Let's move inside. Let's move inside. ये टाइम मेरा सिर्फ और सिर्फ अपने लिए मूल्यवान है। ये समय जो निकलता है अपने लिए। अपने साथ बैठे हूं। I have the power to grow. I have the power to maintain my stability and happiness in all situations. Because I can adjust, not proving myself right always, but peace and harmony is my preference. And I adjust with dignity. With each adjustment, I feel more dignified, more stable. Sending a vibration of my understandings and peace.
And also, I can easily adapt to the permanent changes by molding my desires, changing my wrong beliefs to a more right belief system that helps me to grow, grow, and grow. In this body, in the middle of the forehead, I set a shining, bright, powerful star, the child of God is guiding me to grow. Om Shanti, Shanti, Shanti. Thank you. Om Shanti. Om Shanti Didi. Thank you so much, first of all, for coming and rejoining the Utthan series. And thank you to everyone who's joined the session today. See you in the next session next Tuesday. Thank you. Have a nice day and Om Shanti. Om Shanti.